Enchanté 3, leçon 4. Une journée dans la ville de mes parents. Une journée, so a day in the life of my parents. La journée de Monsieur Dubois. So we'll start the lesson by talking about the day of Mr. Dubois. Salut, je m'appelle Isabelle et c'est mon père, Monsieur Dubois. Il travaille dans une banque. Il travaille à la caisse. Chaque jour, il va à la banque à 9 heures. So we are talking about Mr. Dubois, who is Isabel's father, his daily routine. And why are we doing that? That we'll figure out. But let's see. What are they telling us? The girl says that my name is Isabel and this is my father, Mr. Dubois. He works in a bank at the cash counter and every day he leaves from home at 9. Voilà la journée typique de mon père. So now Isabel is going to tell us the daily routine of her father. Il se réveille à 6 heures du matin. Il va d'abord se promener avec ma mère dans une parc près de notre maison. So she tells us that he gets up at 6 in the morning and then first of all he goes for a walk with Isabel's mother in a park near their house. Ok? Puis, il brosse les dents, il se rase la barbe et il se lave. Ensuite, il s'habille pour aller au travail. So then, his usual chores, he brushes his teeth, shaves his beard, takes a bath, and gets dressed for work. Puis, il prend son petit déjeuner, il lit les journaux financiers et boit son café. So he takes his breakfast, reads the financial newspapers and drinks his coffee. Il sort à 9 heures et prend le bus pour aller à la banque. So he leaves at 9 and takes the bus for going to the bank. Okay? C'est la routine de mon père. So she tells us that this is his typical routine that he follows every morning. Alright? Puis, elle nous dit, then she tells us la journée de Madame Dubois. Yani, the daily routine of her mother. Et voilà ma mère. Elle est très gentille. And this is my mother. She's very kind. Chaque matin, elle se réveille de bonne heure. So there's no fixed time per se, but it says that every morning she gets up in good time, like good enough that she preps up everything for others. Elle prépare le petit déjeuner pour nous. She prepares breakfast for us. Puis il va se promener avec mon père. And then she goes for a walk with Isabel's father. Ensuite, elle prend le petit déjeuner, des céréales avec du lait et des fruits. And then she also takes breakfast. She prefers taking cereals with milk and some fruits. Est-elle s'habille pour aller à l'école? She's a teacher. Elle est institutrice. And that's why she gets dressed for going to school. Elle travaille à l'école où j'étudie. So she mentions that she works in the same school where I study. Elle est très sympathique avec les enfants. She is very kind with kids. Wow. So, it was nice, huh? To know about someone's routine. How nicer would it be if you could express your daily routine in the same way? And that's definitely what we're going to learn in this lesson. But before that, let's look at one interesting thing. Maintenant, on va voir la grammaire. So before we frame structures like these, we need to understand the basics, right? So notice something. I have picked up some sentences from the comprehension only. Il se réveille à 6 heures. Puis il se brosse, se rase, se lave, s'habille. Elle se réveille, s'habille. So, don't you see, this is a very different structure. We haven't usually seen verbs like these before. So, do you notice a difference? Like usually when you conjugate verbs, it's just the subject and the verb. But here we have an additional pronoun, you see. So, sir,
in these case, we have a pronoun between the subject and the conjugated verb. And what is this pronoun doing here? What is it telling about? What is it telling us about these verbs? Let's see. So such verbs are called le verb pronomino. ऐसे verbs को बच्चों हम कहते हैं pronominal verbs, जहां subject और verb के बीच में एक additional pronoun हम लगाते हैं. Pronominal या फिर इंग्लिश में आप इन्हें reflexive verbs के नाम से भी जानते हैं. They are used to denote कि action हमने खुद perform किया. इन verbs के साथ हमेशा एक pronoun होगा, ठीक है, with the subject. प्रोनाउन इंडिकेट करेगा कि सब्जेक्ट ने वो काम खुद से किया. सो टू एम्फसाइज ऑन द फैक्ट कि वो काम मैंने खुद से खुद के लिए किया है, वी यूज द प्रोनाउन. सो इसीलिए कोई भी प्रोनोमिनल वर्ब जब आप फ्रेंच में कॉन्जुगेट करोगे उसके दो पार्ट्स होंगे. एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स, जरूरी नहीं स हो, स के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो भी हम सीखेंगे. एंड दूसरा एक वर्ब. ऑलराइट, ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, आई नो. अभी धीरे धीरे इसे ब्रेक डाउन करेंगे, एग्जांपल्स के साथ करेंगे ताकि सब कुछ आपको सही से समझे. सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स ये कैसे लिखा जाता है अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ. सो ध्यान से देखिए इस टेबल को. अगर सब्जेक्ट ज है तो प्रोनाउन कौन सा यूज होगा? म. और म का मतलब क्या होता है? माई सेल्फ. अगर मुझे ये डिनोट करना है कि ये काम मैंने खुद से किया, आई डिड इट माई सेल्फ, आई यूज द प्रोनाउन म. विथ यू इट्स त, विथ इल स. नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट हियर इज सब्जेक्ट प्रोनाउन नु के साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो भी सेम ही होता है, नु. सिमिलरली वो के साथ वो, इल्स के साथ भी क्या यूज होता है? स. सो जब भी हम कोई वर्ब कॉन्जुगेट करेंगे हमें ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के साथ हम सही प्रोनाउन को यूज करें. अब वर्ब कौन सी हो सकती है इस केस में? वर्ब वैसे ही कॉन्जुगेट होगी जैसे होते हैं. अगर रेगुलर हो तो अपनी नॉर्मल एंडिंग्स फॉलो करो, और अगर इरेगुलर हो तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते ना, उन्हें तो याद ही करना पड़ता है, राइट? चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. हम अब एक प्रोनोमिनल वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं. मैंने वर्ब ली सलावे. सलावे का मतलब टू वॉश वनसेल्फ. अब देखिए ध्यान से, कॉन्जुगेशन के टाइम मैंने सब्जेक्ट के साथ सबसे पहले अपना प्रोनाउन लिखा और फिर लावे जो एक रेगुलर ईआर एंडिंग वर्ब है उसे कॉन्जुगेट किया. इसी तरह त्यू द लाफ, इल के साथ सलाफ, नु लावा, वू लावे, एंड इल्स सलाफ. इजी राइट? नॉर्मल एक वर्ब कॉन्जुगेट करते ही थे, बस उसके साथ एक प्रोनाउन को हमने जोड़ दिया. सो स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट प्लस एक प्रोनाउन एंड देन वर्ब की कॉन्जुगेशन. चलिए अब मैम प्रोनोमिनल वर्ब करा तो दिया, पर जरूरत क्या है इसकी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेगुलर वर्ब एंड अ प्रोनोमिनल वर्ब? सो ये देखें हम, इन केस ऑफ रेगुलर वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट होता है इट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. जब हम एक नॉर्मल वर्ब यूज करते हैं यूजुअली ऑब्जेक्ट को हम दिखाते हैं एज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जबकि इन केस ऑफ प्रोनोमिनल वर्ब्स सब्जेक्ट इज द रिसीवर. रुको एग्जाम्पल से समझा, ठीक है? लावे वर्ब का लिटरल मीनिंग क्या है? टू वॉश. सो इफ आई से je lave la voiture, what am I washing? I'm washing the car. So the object is the receiver of that action. But when I use the verb se lave, what happens? I'm saying to wash oneself. So for example, I say je me lave les mains. So I wash my hands myself. So the subject is the receiver of the action. Alright, and that is why pronominal verbs को reflexive verb भी कहा जाता है.
हम इंग्लिश में यूज करते हैं ना टू शो एम्फोसिस कि ये किसने किया काम, मैंने खुद से खुद के लिए किया. Okay, and that is why we use pronominal verbs in French as well. Moving on, let's have a look at some common pronominal verbs. Se laver, se lever, se rasser, se brosser les dents. So these are some verbs we saw in the context as well, the dialogue we studied. So these are some verbs we saw in the comprehension as well, right? Now, why have I put a star mark here? Se brosser les dents. So एक चीज हमें नोट करनी. So जब हमारे पास बॉडी पार्ट्स हो आफ्टर अ प्रोनोमिनल वर्ब, हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, अनलाइक इंग्लिश जहां पर हम पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं. समझी? इंग्लिश में मैं क्या बोलूंगी? आई वॉश माई हैंड्स, राइट? बट फ्रेंच में मैं ये नहीं बोलती. मैं क्या बोलूंगी? Je me lave les mains. So I use the definite article here and not the possessive adjective में. I won't say je me lave mes mains, I wash myself my hands. No, it doesn't work like that. I simply say je me lave les mains. Okay, let's look at one more example. I brush my teeth. In English we would say that, but in French we would say je me brosse les dents. Okay, this is a very small thing that you need to remember. All right. I wash my hands. I just showed you the example. Je me lave les mains. Perfect. Let's move on and look at some more pronominal or reflexive verbs. I'm sure these verbs must be given in your books as well. You can have a look there as well and learn these. Okay, because when we write our daily routine, these verbs will come in handy. And there's one more table, I guess. Yes, right here. So, in all these verbs, most of them actually they are regular. हमारा pronominal verbs का सबसे अच्छा बात यही है कि ज्यादातर verbs हमें regular मिलती है. कुछ एक irregular है, उनकी conjugation मैं आपको सिखा देती हूँ. ओके, जैसे सापले. आपको आपले वर्ब याद होगी ना, जब हम आपले कॉन्जुगेट करते हैं, ये दोनों ईस के बीच वाला जो लेटर है यानी एल डबल करके लिखते हैं विथ ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट नो एंड वो. सेम रूल अप्लाई होता है जब आप सापले को कॉन्जुगेट करते हैं. इसी तरह स लेवे, लेवे वर्ब हमने पहले की हुई है. फर्स्ट ई पे ग्रेव एक्सेंट आता है विथ ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट नो एंड वो, तो स लेवे के केस में भी सेम चीज होगी. ओके, सो ये दो तो पहले किए हुए रूल्स हैं, बस इनमें प्रोनाउन अटैच कर दिया. लेट्स लुक एट टू मोर कंप्लीटली इरेगुलर वर्ब्स, s'asseoir et se taire. सो इनकी कॉन्जुगेशंस में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है दैट आई कैन टेल यू. You can make a note of these or simply take a screenshot and learn these. Okay, since these are one of those few irregular pronominal verbs, इनके एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं. ओके, अब इतना कुछ कर लिया है, एक एक्सरसाइज कर ले. चलिए, अब इस एक्सरसाइज में आपको वही एज यूजुअल वर्ब्स को करना है कॉन्जुगेट. तो करिए वीडियो को पॉज, क्योंकि अगले 5 सेकंड में क्या होगा? आंसर्स स्क्रीन. ठीक है, ध्यान से करिएगा, रूल्स को ध्यान रखिएगा. चलिए, टैली कर लीजिए अब अपने आंसर्स मेरे आंसर्स के साथ. कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या प्रोनाउन गलत लगाया है तो मेक अ नोट ऑफ इट, ताकि आगे वो गलती रिपीट ना हो. ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. सेम टॉपिक, अभी खत्म नहीं हुआ ये टॉपिक. इसी टॉपिक में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उन्हें और देख लें. ले verb pronomino or negative. Now, how will we write the pronominal verbs in negative? क्योंकि जनरली हमने क्या सीखा है? सब्जेक्ट, न, वर्ब, पा और ऑब्जेक्ट. तो हमने जनरली सीखा है वर्ब से पहले न, वर्ब के बाद पा. तो अब यहाँ क्या होगा? प्रोनाउन वर्ब से साथ रहेगा या वर्ब से अलग रहेगा? लेट्स सी. So in case of negation of pronominal verbs, we add na
before the pronoun, you see, and pa after the verb. चलिए, वो स्ट्रक्चर मैंने कर दिया गायब। तो नया स्ट्रक्चर हमें क्या समझ आया है कि न लगेगा प्रोनाउन से पहले और फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा पा। ठीक है, तो देख लेते हैं। सो दिस इज अनलाइक द रेगुलर कंस्ट्रक्शंस जहां पर हम न बिफोर द वर्ब और पा आफ्टर लगाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, न पास लावे, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ज न मलाव पा। तो यही स्ट्रक्चर फॉलो कर रही हूँ मैं। ऐसे त्यू न तलाफ पा, इलेल न सलाफ। इजी, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। अब ज्यादा मुश्किल नहीं है तो एक बार ट्राई कर लो ये एक्सरसाइज। अब ये 5 वर्ब्स हैं, बट कैच क्या है, पांचों को नेगेटिव में लिखना है। ठीक है, कॉन्जुगेट करो जैसे करते हो प्रेजेंट टेंस में, बस न पा भी लगा दो ताकि एक बार आदत पड़ जाए कि कैसे ये स्ट्रक्चर लिखा जाता है। पॉज करो वीडियो, जल्दी से ये पांचों सेंटेंसेस के आंसर लिखो और जैसे ही हो जाए वापस आ जाओ, वापस आके मेरे आंसर्स के साथ उनको टैली कर लो। ठीक है, देखो कोई गड़बड़ तो नहीं की, लगता नहीं मुझे वैसे कि करोगे, स्टिल चेक कर। अब नेगेशन हो गया तो अगला टॉपिक क्या आएगा, इंटेरोगेशन। l'interrogation des verbes pronominaux। अब इनको क्वेश्चन फॉर्म में कैसे लिखें। So the interrogation for pronominal verbs is done in the same way as for other verbs। जैसे बाकी verbs की जाती है, इनकी interrogation भी वैसे ही की जाएगी। Intonation में put a question mark at the end of the sentence। Addition में add एस्क in the beginning of the sentence। But inversion में क्या होगा, यही तो मुसीबत होती है हमेशा। इन्वर्ट द सब्जेक्ट एंड वर्ब, सेम, आसान कैसे। और आपने इन्वर्जन में सब्जेक्ट और वर्ब इन्वर्ट करने की बात की, प्रोनाउन कहाँ जाए। समझदार हो, पता है मुझे, आओ मेरे साथ दिखा दो। इन एग्जांपल्स को देखो। इंटोनेशन में अगर सेंटेंस है त्यू ताबील पुर लसवारे, क्वेश्चन में कैसे बनाऊंगी, आई विल रिमूव द फुल स्टॉप, पुट क्वेश्चन मार्क इंस्टेड। एल नसरवई पार्लर, अगर वही नेगेटिव सेंटेंस हो तो सेम चीज, फुल स्टॉप हटाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ। एडिशन में क्या होगा, एल नसम न्यूज़पेपर, तो ऐड कर दूंगी एस्क और एंड में लगा दूंगी क्वेश्चन मार्क। और अगर एफर्मेटिव सेंटेंस हो, नुनु लेवो अवितर जीमाता, तो एस्क नुनु लेवो अवितर जीमाता। सो यू सी, ये पहले दो तो सेम टू सेम ही लगा, कोई दिक्कत नहीं। बट मैम इन्वर्जन पे आओ, सारी दिक्कत वहीं आती। नहीं आएगी दिक्कत, देखो जरा ध्यान से। Remember the pronoun will stick to the verb। बस अगर ये चीज याद रख ली तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोनाउन वर्ब के साथ चिपका रहे। जैसे त्यू त दिसा, वैसे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब की जगह आपस में बदलते हैं, राइट। बट अब हमने क्या रूल सीख लिया कि ये प्रोनाउन और ये वर्ब आपस में जुड़े रहेंगे। तो देखिए क्या होगा इसका, त दिसा भी उल्टी, कहा था ना इजी है। ऐसे ही देखो, il se dépêche pour l'école, तो स dépêche तिल। अब ये मत पूछना टी क्यों आया, क्योंकि दो वॉवल साउंड्स थे तो बीच में टी आता ही है। स dépêche तिल pour l'école। अगला देखो, nous nous amusons à la plage, तो इसका इन्वर्जन कैसे होगा, याद है ना, सब्जेक्ट बदलना है, तो नु बन जाएगा वो, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वो amusez-vous à la plage। तो वही सेम रूल्स जो हमने पिछले लेसन में सीखे थे यहाँ अप्लाई होंगे। हाइफन आएगा सब्जेक्ट वर्ब के बीच, टी आएगा जब वॉवल साउंड्स हैं, और ज नु वाले स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन थ्यू और वो में बने। पर क्या होगा जब मैं इनको नेगेटिव कर दूंगी, न विल कम बिफोर द प्रोनाउन एंड पा आफ्टर द सब्जेक्ट।
ये देखिए, ट्यू न त देसाबिल पा, क्या होगा इसका? 1 मिनट के लिए भूल जाओ यहाँ न पा था तो कैसे लिखते? पीछे वाली स्लाइड की तरह, त देसाबिल त्यू। तो बस उसमें क्या करना है, त से पहले न, त्यू के बाद पा, राइट। इसी तरह il न स de pespa pulle col, तो वो बच्चे जिनको दिक्कत आती है कि नहीं मैम ऐसे एकदम से समझ नहीं आता, भूल जाओ यहाँ नपा था, कर सकते हो अब इन्वर्जन। क्या करोगे, स दे पेश पहले, बीच में आया टी, फिर लिखा इल, इतना कर लिया। जब वो हो जाए तो याद कर लो, न सेंटेंस के शुरू में लगाना है, पा सब्जेक्ट के बाद लगाना है। तो ये इतनी क्यों टेंशन लेनी है, छोटे छोटे ट्रिक्स को ध्यान रखो। अगला देखो, नू ननू अम्यूजोपा आला प्लाश, तो इसमें भी पहले नू को वू में बदलना, उसके बाद क्वेश्चन बनाना, न वो अम्यूजेबू पा आला प्लाश, मेरा क्वेश्चन मार्क रह गया बस यहाँ पे। ठीक है, आसान ही है ना, मुश्किल तो नहीं है। चलिए आगे बढ़े, एक्सरसाइज आगे वापस। अब आपको इन सेंटेंसेस को जिनमें प्रोनोमिनल वर्ब्स है इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट का मतलब इंटोनेशन, सेकंड का मतलब एडिशन, और रोमन नंबर 3 का मतलब वर्जन। आई होप याद ही होगा। ठीक है, तो पॉज करिए वीडियो को, जल्दी से करिए इसको ट्राई, और जैसे ये हो जाए अपने आंसर्स को मेरे आंसर से करिए टैली। तो इसी के साथ प्रोनोमिनल वर्ब्स का टॉपिक हुआ यहाँ पे समाप्त, एंड मैं लूंगी अब आपसे विदा। आज के लेसन में हम इतना ही करेंगे, बाकी के टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसी लेसन के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए au revoir।